અમદાવાદ અને સુરતમાં કાપડના વેપારીઓ છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ વધતા કાપડના વેપારીઓમાં ચિંતા. એસોસિએશનના પ્રમુખે કર્યું પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન. અમદાવાદ ઇસ્કોન કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ઓફ અમદાવાદ એન્ડ સુરત એસોસિએશનના પ્રમુખ લોકેશભાઈ લાલવાણીએ તારીખ 14 જુલાઈ 2024ના રોજ પત્રકારો સાથે સંવાદમાં જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદ અને સુરત સહિતના સમગ્ર દેશના તમામ રાજ્યોમાં કાપડના વેપારીઓ સાથે લેભાગુ તત્વો દ્વારા ધંધામાં થતી લાખો અને કરોડો રૂપિયાની આર્થિક છેતરપિંડી અને ઉચાપત સાથે કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા વેપારીઓને થતી હેરાનગતિ બાબતે ચિંતાનો વિષય હોય પત્રકારો સાથે ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું. અમદાવાદ ઇસ્કોન કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ઓફ અમદાવાદ એન્ડ સુરત એસોસિએશનના પ્રમુખ લોકેશભાઈ લાલવાણીએ કેટલાક અસામાજિક તત્વો કાપડ બજારમાં વેપારી બની અન્ય કાપડના વેપારીઓ સાથે ધંધામાં લાખો અને કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી અને મોટી ઉચાપત અનુસંધાને ગુજરાત પોલીસ દ્વારા છેતરપિંડી ઉચાપતના નોંધાયેલા ગુનાની કામગીરી ઝડપી કરવા અને કાપડના વેપારીઓ સાથે થયેલા ઉચાપત અને છેતરપિંડીના પડતર કેસની સત્વરે નિષ્પક્ષ કાર્યવાહી કરવાની રજૂઆત મીડિયા કર્મીઓ અને પત્રકારોના માધ્યમથી ગુજરાત સરકારમાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી માં ડીજીપી વિકાસ સહાય સહિત અમદાવાદ શહેર તથા સુરતના પોલીસ કમિશનર અને પોલીસ વિભાગ સુધી પહોંચાડી છે. કાપડના વેપારીઓ સાથે થયેલા લાખો અને કરોડો રૂપિયાની ઉચાપત અને છેતરપિંડીની ઘટનાઓ ઉપર આવનારા સમયમાં કઈ રીતે અંકુશ લાવી શકાય અને આવા પડતર કેસોના ઝડપી ન્યાયિક કાર્યવાહી અને નિકાલ કઈ રીતે થાય એ બાબતમાં ગુજરાત સરકારમાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીમાં ડીજીપી વિકાસ સહાય સહિત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની EOW આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાના અધિકારીઓની સલાહ સૂચનો અને ચર્ચા વિમર્શ પણ આવનારા સમયમાં ટેક્સટાઇલ એસોસિએશન ઓફ અમદાવાદ એન્ડ સુરત એસોસિએશનના પ્રમુખ લોકેશભાઈ લાલવાણી સહિત કેટલાક વેપારીઓ કરી યોગ્ય ન્યાયિક મદદ મેળવશે. આવનારા દિવસોમાં મોટી સંખ્યામાં વેપારીઓ એસોસિએશન સાથે જોડાઈ એસોસિએશનના નીતિ નિયમો મુજબ વેપારીઓ કામકાજ કરે અને કાપડ બજારનો કોઈ પણ વેપારી ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન ન થાય કે વેપારી સાથે કોઈ મોટી છેતરપિંડી ન થાય એવી એસોસિએશનના પ્રમુખે આશા વ્યક્ત કરી હતી. મોટી રકમની ઉચાપત અને છેતરપિંડી આચરનાર અને બની બેઠેલા કેટલાક ઢોંગી વેપારીઓ અસલ વેપારીઓ સાથે છેતરપિંડી કરનારા તત્વો વિરુદ્ધ ગુજરાત પોલીસ દ્વારા સત્વરે સખત કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ એસોસિએશન प्रमुख द्वारा કરવામાં આવી છે. अहवाल इमरान कुरैशी, अहमदाबाद। आप सभी पत्रकार महोदय का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को देना चाहूँगा। मेरा नाम लोकेश लालवाणी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत, जिसका शॉर्ट नेम है टास। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कपड़े बाजार में होने वाले फ्रॉड और स्कैम को लेकर। मैं सभी देशवासियों को, सरकार को और प्रशासन को कहना चाहूँगा, टेक्सटाइल मार्केट जिसको गुजरात की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है, गुजरात की जीडीपी में 45% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल बाजार की है। और आज हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि उसी जीडीपी, उसी इंडस्ट्रीज के व्यापारी आज रो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है और प्रशासन और सरकार द्वारा उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कपड़े बाजार में जिस तरीके से फ्रॉड और स्कैम होते हैं, करोड़ों रुपए के कौभांड होते हैं, करोड़ों रुपए का माल व्यापारियों का हड़प लिया जाता है, कतार माल लिया जाता है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसी घटनाएं निरंतर चलती रही और उस पर लगाम वक्त रहते हुए नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में टेक्सटाइल बाजार से और व्यापार से व्यापारियों का भरोसा और विश्वास हो जाएगा। ये जो एसोसिएशन है उसके अंदर कितने मेंबर हैं आपके, और ये पहले क्या था और आज एसोसिएशन कैसे बना? ये एसोसिएशन बना है आज से 7 महीने पहले। इससे पहले एक टेक्सटाइल ग्रुप हुआ करता था, करीबन 3000 व्यापारियों का टेक्सटाइल ग्रुप था। उसमें हम 3 साल से व्यापारियों की सहायता कर रहे हैं, उनके मसलों को सुनने की और निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दो व्यापारियों के बीच में आपस में जो भी डिस्प्यूट है उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि दो व्यापारियों का जो भी डिस्प्यूट है सबसे पहले एसोसिएशन में बैठकर निपटाने का एक प्रयास किया जाए। अगर एसोसिएशन में नहीं निपटता है तो आगे कानूनी प्रक्रिया हर व्यापारी के लिए खुली है। अभी वर्तमान में
देखा जाए तो टेक्सटाइल ग्रुप से 3 से 4 हज़ार व्यापारी जुड़े हुए हैं। रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या 250 से ज़्यादा है। मेंबर्स प्रतिदिन कार्यालय पर आते हैं, विजिट करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए एसोसिएशन से पूरी सहायता लेते हैं। एसोसिएशन के अंदर कौन से शहर के लोग जुड़े हुए हैं? जो व्यापारी है आपसे वो कौन कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? ये बेसिकली अहमदाबाद और सूरत के बाजार के व्यापारियों के लिए बनाए हैं। इसके अलावा भारत के किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर का व्यापारी जुड़ सकता है। अहमदाबाद के अंदर कोई भी उसका मसला है या कोई भी समस्या है, उससे एसोसिएशन से अपनी सहायता प्राप्त कर सकता है। अच्छा, आप बात कर रहे कितनी सहायता करी, कितना व्यापारियों ने केस सोल्व करी? अभी तक ऐसे है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो 3 सालों में सैकड़ों व्यापारी, हजारों व्यापारी आते हैं अपनी समस्या लेके। प्रतिदिन एसोसिएशन कार्यालय पर भी कई व्यापारी अपनी समस्या लेके आते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हो कि ये फ्रॉड कब कितना हुआ आज तक? देखो, फ्रॉड की कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। नहीं, लेकिन कोई आपके पास उसका होगा कि 15-20 कितना हुआ है? 15 करोड़ रुपए के तो समझो सिंगल पार्टियों की फ्रॉड है। ऐसे आप ऑल ओवर फ्रॉड की आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको एग्जैक्ट आंकड़ा। अच्छा, आप बात कर रहे हो कि 15 करोड़ का फ्रॉड अभी तक हुआ है। अहमदाबाद में ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है? आपने पुलिस कंप्लेंट की है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, मैं आपको बताऊं, पुलिस कंप्लेंट की अगर आप बात करते हो, आप एक बार एसआईटी चले जाओ, आपको आंकड़े मिल जाएंगे कितने पुलिस में मामले पेंडिंग पड़े। आप क्राइम ब्रांच में चले जाओ, वहाँ से आपको सरकार आंकड़े दे देगी, प्रशासन आंकड़े दे देगी कितने मामले पेंडिंग। 15 करोड़ की बात आप करो, बहुत बड़ी रकम है। जो व्यापारी आपको कोई लिखित में कागज या कुछ दिया है आपके पास? क्या सर, हमारे पास में ऐसे करोड़ों के आए दिन स्कीमों के लिखित में शिकायतें आती है व्यापारियों की। और आप जो कह रहे हो ये बहुत बड़ी रकम है, मैं कहता हूँ ये मामूली रकम है। सूरत की आप बाजारों में जाओ, वहाँ 25-30 करोड़ रुपए के मामले चल रहे हैं, आपकी मीडिया में खबरें प्रकाशित होती है। आप कौभांड की बात कर रहे हो कि अहमदाबाद हो या फिर सूरत हो, अलग अलग शहर में जो कौभांड हो, व्यापारी टेक्सटाइल में जो जुड़े हुए उनके साथ कौभांड हो रहे हैं, किस तरह से कौभांड व्यापारी के साथ होता है? सर, इसमें 2 तरह के कौभांड होते हैं। एक तो होता है इंटेंशनली कि भाई मैंने कपड़े बाजार में दुकान लगाई, मैंने किसी व्यापारी से अपना विश्वास जमाया और विश्वास जमा कर मैंने करोड़ों का माल बाजार से उधार लेकर अपनी फर्म बंद कर दी। ये होता है कि इंटेंशनली स्कैम। दूसरा होता है कि एक व्यापार चलते चलते व्यापारी डूब गया या फर्म डूब गई। दोनों में एक इंटेंशन देखना पड़ता है कि व्यापारी का इंटेंशन क्या था। क्या उसने वाकई में एक स्कैम के इरादे से फर्म खोली थी या व्यापार चलते चलते उसका नुकसान हो गया। तो प्रशासन ने आप जो फ्रॉड वगैरह जो हो रहा है आपके साथ, व्यापारियों के साथ, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करके एक अलग से कार्यकाल चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट से, क्राइम ब्रांच से। तो वो लोग आपकी सहायता करते हैं? पुलिस प्रशासन सहायता करता है, मसलों को सुनता भी है। जो फ्रॉड स्कैमर है उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी की जाती है। पर अभी भी कुछ हम कह सकते हैं कमी पेशी है। जिस तरीके से कार्य होना चाहिए वैसा नहीं होता है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके रिजल्ट भी मिलता है, पर कुछ हमें और सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और उसमें और अच्छी तरीके से सुधार लाकर काम किया जाए। आपकी और जो आपके साथ जुड़े हुए व्यापारी एसोसिएशन से है, उनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से और किस तरीके से? हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरीके के स्कैम और फ्रॉड करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सबक सिखाया जाए। कपड़े बाजार में आज की डेट में अहमदाबाद में 20,000 व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। कुछ लुफा तत्व के लोग, कुछ क्रिमिनल टाइप के लोग भी दुकानें खोलकर बैठे हैं, जिनका मकसद होता है माल को उड़ाना, पैसे को उड़ाना। व्यापारियों को डराया धमकाया जाता है, व्यापारियों को जबरन सेटलमेंट के लिए विवश किया जाता है। लोगों की गैंग बाजारों में आकर बैठकर एक व्यापारियों को प्रताड़ित करती है और इस तरह की घटनाएं काफ़ी हो चुकी है इस बाजार में। अभी एसोसिएशन बनी है, हम ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्य कर रहे हैं। ऐसी लुक्खा गैंग को भी हम पकड़वा कर पुलिस के हवाले करवा रहे हैं, ताकि बाजार में एक जो व्यापारी के अंदर शांति का माहौल है, एक डर का माहौल है, भय का माहौल ना रहे। और ये सारे प्रयास पुलिस के मार्फत हम कर रहे हैं, पुलिस सहयोग भी करती है, पर कहीं कहीं पर कुछ कमी पेशियां रह जाती है, जिसकी वजह से पूर्ण इंसाफ नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट में उसमें क्या रूल है? गवर्नमेंट में ऐसा रूल है कि कोई भी व्यापारी के साथ फ्रॉड होता है तो इकोनॉमिक ऑफेंस जो अलग से कपड़े बाजार के लिए बनी हुई है, पुलिस प्रशासन की जो एक विभाग बना हुआ है, उसमें व्यापारी अपनी अर्जी लगाता है। उसके बाद पुलिस को अगर लगता है कि व्यापारी के साथ कोई छेतरपिंडी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, कोई स्कैम हुआ है, कोई व्यापारी के साथ जानबूझकर, तो 406, 420 जैसा मुकदमे भी दर्ज होते हैं। अगर उसमें षड्यंत्र में कोई और गैंग और ग्रुप शामिल है तो 120 जैसे प्रावधान भी लगते हैं। इस तरह की पुलिस द्वारा कार्रवाइयाँ होती है।
पर अभी इस कार्रवाइयों को हम देखा जाए तो अगर पुलिस प्रशासन थोड़ा और सख्त हो जाए, अच्छा, थोड़ा सा संज्ञान में ले ऐसे मामलों को सख्ती से, तो सुधार आ सकता है कपड़े बाजार में। आने वाले समय की 10 या 15 दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, तो आपकी क्या आशा है, अपेक्षा है टेक्सटाइल मार्केट से लेकर? साहब, टेक्सटाइल बाजार के लिए अगर मैं आशाओं की बात करूं तो आज तक किसी भी बजट में टेक्सटाइल बाजार को कोई स्पेशल सौगात तो मिली नहीं है, या गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल व्यापारियों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा नहीं की है, जितने बजट मैंने देखे अपने जीवन में या अपने कार्यकाल में।